हरि ताने आप राधे तारे हरि नाम हरि ताने आप तो मस्ताने आप राधे नाही कैड़ा
जय जय राधा रमण चारु राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा आखिया है दर्द निडोना का मुस्कान है जादू टोना का मुस्कान है जादू टोना का सुख दास है किसे बिन हो जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण चारो राधा रमण जय जय राधा रमण करता श्री राम हरिबोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव गोस्वामिनां गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्ति स्वरूपाय भक्तिप्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नाम्ने श्रीवात्सवानवि देवी दैत्याय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायतैक्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां शरणन्तिकं भक्त्या विनापराधलक्ष्ये कित्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं जं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my reverent humble obeisances and the lotus feet of my spiritual master Nitra Vishnupada. अष्टोत्तर 87 श्रीमद् Sri Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, I pray His causeless mercy. Then I offer my innumerable humble obeisances and the lotus feet of His Divine Grace Nitra Vishnupada Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Jagatguru Srila Prabhupada. I offer innumerable humble obeisances to Lord Sri. I pray to His causeless mercy. Then I offer my innumerable humble obeisances and the Lord all Guruvar, Gurupanga, Guruvar. I pray to His causeless mercy. Then I offer my innumerable humble obeisances and the Lord Sridhar. Om Vishnu Pada Ashtotra Sutasi Srimad Nitra Bhakti Vedanta Swami Maharaj Nitra Vishnu Pada Sri Bhakti Rakhya Siddhadev Swami Maharaj Nitra Vishnu Pada Ashtotra Sutasi Sri Bhakti Puri Goswami Maharaj. I pray to His causeless mercy. Then I offer my innumerable humble obeisances and the lotus feet of Vishnu Pada Bhakti Vichar Vishnu Goswami Maharaj, Vishnu Pada Bhakti Sadhu Kesava Goswami Maharaj, Sripad Bhakti Sadhak Muni Maharaj, Sripad Narasimha Maharaj, Sripad Sadhu Maharaj, Sripad Madhusudan Maharaj, Sripad Santa Maharaj. Then I offer my innumerable humble obeisances to Sripad Bhakti Bodhayan Maharaj. I pray to causeless mercy from all them. Then I offer my innumerable humble obeisances who are present here. All brahmacharis, all devotees, all matajis, practice causeless mercy. Today, by the grace of Guru and Gauranga and Lord Radha Madhav, we are coming here to participate Sunday program. Sunday feast. Feast means by which we get happiness to give to our mind happiness. But the real happiness, Srimad Bhagavatam says, Tadeva Ramyam Ruchiram Navam Navam Tadeva Manasa Tadeva Manaso Matsavam Tadeva Sokar Navaso Sananganam Jad Uttama Sloka Gunam Varnam. Really, what is give to us happiness? That only the glories of Supreme Lord. If we listening His name, His form, His pastimes, then we will get real happiness. This is eternal happiness by Supreme Lord, by the mercy of Supreme Lord,
when one can get the chance to associate with devotees, by the association of our devotees, we get the opportunity to listening his powerful, glorious, powerful pastimes. So, in this world, the most important thing is association of devotees. Our scripture says, साधु संग सर्वशास्त्रे कहे लवे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है. If we will get very little time to associate with the sadhu, we will get our perfection. We will get our ultimate goal. So, satsang means what? Sat and sang both come in satsang. Sat means who is eternal, who is Supreme Lord, who is blissful, he is full of auspiciousness. He is Sat. Sang means by which we will get like this Sat, like Supreme Lord, by which, that is Sang. So, satsang gives to us knowledge, who am I, who is Supreme Lord, what is the relation between Supreme Lord and ourselves. What is the relation between Supreme Lord, what is after relation, what we will do to Supreme Lord. That is bhakti, that is service. By service, what we will get? How we will serve? With love and affection. All this samand, avidya or prayojan. These three also we will get from this association. So, we need pure devotion to Lord's feet of Supreme Lord. Where we will get this devotion? Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijaya. Bhakti will come, devotion will come by the association of devotee. So, bhakti only we will get by association of devotion. When we will associate with the sadhu, then our intelligence will come. We are intelligent. Intelligent means what should we do, what we should not do, what is good for us, what is bad for us, who will give this knowledge, that is intelligent. So this intelligence where we will get? That intelligence we have to get from association of pure devotion, pure devotee. So human birth is very rarely obtained. Without association, human birth is useless. Why? If we don't know about ourselves, don't know about Supreme Lord, then what we will do? We do like animal and birds. In Shastra says also, all animal, birds and human beings doing normal 4 things. But what is the importance of this human birth? So scripture says,
आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्मै तेषां अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समान. All you know these four activities normally all are doing. Animal, birds, human beings are doing ahar, nidra, bhaya. But what is the importance of human bird? Dharmai tesam adhiko vishesha dharmena hina pasuvina. We have for human bird most important is to practice religion. What is the religion? What is supreme religion? Srimad Bhagavatam says, Savai punso paro dharma jato bhakti adakyaje ahetuki apratyata swatma suprasiddhati. By which activities our soul will be happy, that is the really religion. Real religion, the topmost religion, jato bhakti adakyaje. Here says the topmost religion is to devotion towards Supreme Personal Lord Krishna. Devotion means what? Bhakti. Bhadhatu sevaya. One should practice devotion towards Lord's feet of Lord Krishna. Bhakti means service. With love and affection, we should do to service to Lord's feet of Lord Krishna. That is the bhakti. So Shastra says, Sarva upadi vinirmukta tat paratpena nirmalatvam husikenam husikesam sevanam bhakti uchyate. Sarva upadi vinirmukta. So many designations we have. We have identified ourselves. I am human being, I am man, I am woman, I am doctor, I am farmer, I am many things we are indicate ourselves. But really, this is not our identify. Our real identify is I am eternal servant of Supreme Lord. This is our real identify. But we are identified so many things. All are false. Our designations are not proper. Only our one designation. So, Sarva Upadi Vinirmukta. We should free from all this designation. Only one thing. That is, I am the eternal servant of Supreme Lord. When one soul came in this position, he free from all bondages of this material calamities. So, Krishna, Jiva Krishna Das, a Vishwas Parileta Dukha Nahi. What is in this material world? What is our miseries and difficulties? Only this is. When we forget to Krishna, when we forget to our identify, I am the eternal servant of Lord Krishna, then all distress came to us. The root cause of distress in this material world, only forgetting to Lord Krishna. So, all scripture says we are the eternal servant of Supreme Lord. So, all scriptures give instructions. Smartavya satatam Vishnu visvartavya nadatchi sarva vidhi nisedasya ete reva kinkara. What we should do, what we should not do. All scripture speak many things, but the essence of this, what we should do, smartavyam satatam Vishnu. Continuously you
you remember to Supreme Personal God of Krishna. This is our vidhi. Nishat, we should not forget to Krishna one moment also. Devotees always engage their times, engage their service with remembering Supreme Lord. He never forgets Krishna. So devotees are always happy. If we want to happiness, we should go to devotees. You should associate with devotees. Why? When we came to temple, we see all brahmacharis, maharaj, they are always engaged in Krishna service. So they are always happy. If we also associate with them and follow their instruction, they are also give some instruction for service to Krishna, chanting to his name and remembering his pastimes, automatically happiness will come. Why? The root cause of happiness to remember Krishna, and root cause of distress, forgetting Krishna. This is the most important. So all scripture says like this. So this material world is full of distress. Sansara dukkha jalado. Patitasya kam pradadi natra makare kavali kutasya. Durvasana nigaditasya nirasrasya. Chaitanya Chandra Mamadei Padavalamma. If anybody desire to free from this metal bondage, they should took shelter the Lord's Feet Chaitanya Mahaprabhu. If we took shelter of Chaitanya Mahaprabhu, what Chaitanya Mahaprabhu instructed us? Kirtanya Sadhari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we have to very careful. If really we try to get happiness, we have to follow the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu's only instruction, Kirtanya Sadhari. Wherever you stay, what you should do, work, no problem. You do your work by your body, but your mind should be engaged with remembering the Supreme Lord. Someone may be thinking, this is very difficult to always remembering Krishna. But we have to practice how we should practice remembering Krishna with every time. Not if you practice automatically, slowly, that will come to our mind. So Lord Krishna instructed Arjuna, what is in this material world, what is the most difficult work? Most difficult work means to fighting in battlefield. Lord Krishna instructed to Arjun, Mamanu Juddha Smarancha. You should fight with your enemy, but don't forget me. Every moment you should fight with remembering to me. If we battlefield one can remember with the fighting, why can we not remembering with any work? We should try to practice. Then our life will be successful. Why? Wherever any circumstance, any field, what we should do, no problem. But always with remembering Supreme Lord, then our all activity will be successful. So Mahaprabhu says, Kirtanya Sadhari, Chaitanya Mahaprabhu descended in this material world to talk to us how we should maintain our life. Wherever what you do, always with the Krishna consciousness. Remember Krishna, then our life will be successful. This is the
the best way to please your mind. To please our mind, this is big austerity. Everybody doing so many ways only for peace to our mind, but always they getting unhappiness, distress, tensions, many things. Why? We should know whose mind is always happiness. Whose mind is always happiness? Whose mind remembering the Krishna, their mind is always happiness. If forgetting Krishna and our mind when engaged with these material things, material happiness, that is not really happiness. That will give more and more tension, and more and our inside burning will come more and more. If you get new these material things, again your heart will more and more burning will come. But in thinking we get so many material things, so many opulence, by this one cannot get really happiness. To get happiness, we have to need our mind should be engaged with Supreme Lord's Lotus feet. This is the best way, no any other way. So, if anybody desires to please to your mind, we should be free from this material person, material things, and material existence. Those free from them, they will only get real happiness. If we will more and more engerment, and we are more and more attachment with these material things, we cannot get happiness. So all Shastra says, Anityam asukham lokam imam prapta bhajasvama. We have to know in this material world, all things are temporary and distressful. So how they can get us happiness? If we want to happiness, peaceful life, then we have to try to engage our mind to Supreme Person of God or Lord Krishna service. Then our life will be successful. Now, our Maharaj will speak. All your attention, listen. I will stop here. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha pattanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Hare Krishna. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि Hare Krishna, clap the hands and everybody please chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Again please chant loudly. Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Please Sri Radha Govinda Bhagavan ki Jai.
till now we are listening about the lotus mouths of in our beloved God brother Shri Bhakti Tilak Nishkinchan Maharaj. Now in here more than Indian people in here. Maharaj speak in English, then I want to speak in Hindi. Okay? हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि महाराज जी ने इंग्लिश अभी तक बताया। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हिंदी कम्युनिटी है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग संडे प्रोग्राम में आते हैं सत्संग करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, हे अर्जुन, विदाउट सरेंडर में, मेरे शरणागति के बिना इसी संसार की कोई भी वस्तु प्राप्ति नहीं कर सकते हो। Then material desires cannot fulfill without surrender. They want to get it translated, so I can do it or you can. It's up to you. Okay. Some people, they are Germans. Okay. They are requesting. Okay. I think English will be better. English will be. I don't know. I can translate if you want. Yes, you translate something. Hare Krishna. Better to sit in there. Mataji will be sit there. Yeah, I will sit there. You translate That's better. Yeah. in there. अभी दो लोगों के लिए क्या ट्रांसलेट करना है, जो लोग पास में बैठेंगे वहीं पर बोलना। तो विदाउट सरेंडर, शरणागति के बिना मेटेरियल डिजायर फुलफिल भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही कि अकाम सर्व काम व मुख्य काम उदारधि शीघ्रेण भक्ति योगेन जजेतः पुरुषम परम। जो लोग मेरे शरण में नहीं आते, जो लोग मेरे में भक्ति नहीं करते, उनको ये संसार की वस्तु भी मैं नहीं देता हूं। देने वाले तो ठाकुर जी है ना, देने वाले तो ठाकुर जी है। कहते ये संसार की वस्तु चाहने पर भी मैं नहीं देता हूं। और यदि वो लिबरेशन चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो मेरे शरण में आना पड़ेगा, मुझ में भक्ति करना पड़ेगा। और यदि कहीं भगवान को पाने के लिए भक्ति करना चाहते हो, तो मेरे शरण में आओ, मेरा भक्ति करने लगो। इसीलिए उनके शरण के बिना ये मटेरियल डिजाइन भी फुलफिल नहीं हो सकता है, क्योंकि विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द राधा गोविंद, उनकी कृपा के बिना हमारा वांटिंग फुलफिल नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट पीपल हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो भी ठाकुर जी की कृपा को चाहते हैं। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, उनके ऊपर सबकी कृपा हो जाती है। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में आते और 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में नहीं आते। जो भाग्यवान जीव है वो 4 प्रकार के जीव हैं। जो who is the good fortune peoples, वो 4 व्यक्ति है जो मेरे शरण में आकर के भगवान का भजन करते हैं। वो है अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सवा। जो अर्थ की आशा में
कुछ पाने की आशा में कुछ लोगों ने भगवान की भक्ति करने लगे, जैसे कि ध्रुव जी महाराज। माता विमाता सुरुचि ने कह दिया, हे ध्रुव, तुझे ये राज्य सिंहासन को प्राप्त करना है, कोई महत पद को प्राप्त करना है, तो अधखज भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। उनकी शरण के बिना आप कभी महान बन ही नहीं सकते हो। अधोक्षज पाद पद्मं यदिच्छ से महत आसनम तथा। ये माता सुनीति ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, यदि जीवन में कहीं महान बनना चाहते हो तो प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना के बिना हम कभी महान बन ही नहीं सकते। ये माता सुनीति, सुनीति का मतलब है शास्त्र की नीति पर चलने वाली जो व्यक्ति है उसको कहते हैं सुनीति, जो सुंदर नीति है। सबसे सुंदर नीति क्या है ना, अकॉर्डिंग फॉलो द शास्त्रस। जो महापुरुषों ने जिन जिन बातों को कह गए उसी बातों को फॉलो करना, उनको अनुसरण करना ही उसको कहते हैं शास्त्र। तो ध्रुव ने वही महत पद को प्राप्त करने के लिए गया था, भजन करने के लिए, और भगवान ने अपना दर्शन दे दिए। तभी ध्रुव को भगवान ने कहा कि ध्रुव, मेरा तो आविर्भाव हो चुका है, दर्शन कर चुके हो, तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगे, भगवान, मैंने एक कांच के टुकड़ा को पाने के लिए आया था, परंतु आपने पारस मणि दे दी। समझते हो ना पारस मणि कौन सी है? जो लोहे को छूते ही जो सोना बना दे, स्पर्श मणि कहते हैं, पारस मणि कहते हैं। तो ऐसे ही मैं तो आया था केवल देखिए सिंहासन की प्राप्ति के लिए, परंतु आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी, जिनके कारण मुझे तो मानो जी कि मुझे पारस मणि मिल गया। ये अर्थार्थी भक्त था, भगवान के भजन करते करते उनकी जो कामना है, अर्थ की प्राप्ति की जो आशा है, वो खत्म हो गई है। और जिज्ञासा लेकर के अर्थात ज्ञानी बनकर के आए थे शौनकादि ऋषियों ने। श्री शुद्ध गोस्वामी जी से भागवत कथाओं को श्रवण करने के बाद उनकी ज्ञान की गरिमा चली गई। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जो 4 बेटा है ब्रह्मा जी के, उनसे बढ़कर के जगत में कोई ज्ञानी नहीं थे। जो सदैव 4 years old, वो 4 वर्ष की अवस्था से कभी बढ़ते ही नहीं है। और उनके समान जो सदैव जी की हरि शरणं जगामा, जिनकी व्यसन है कथा मात्रे का जीविना, वो केवल जी की बद्रीनाथ में रह करके केवल भगवान की कथा में ही रमण करते रहते हैं। यदि कोई श्रोता नहीं मिलता है तो 3 भैया बैठ जाते हैं, एक भैया जी की महाराज प्रवचन करने लग जाते हैं। और यदि कोई श्रोता मिल जाए तो महाराज चारों भैया व्यास आसन पर बैठ करके प्रवचन ही करते रहते हैं, क्योंकि उनका व्यसन है कथा मात्र का जीवन, भगवान की कथा ही उनका जीवन है। परंतु ऐसे जी के महाराज ज्ञानियों का भी परम भक्ति करने लग गए, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी ज्ञानी च, और जिज्ञासु के स्वरूप में देवी सौनकादि ऋषि है। सुत गोस्वामी जी की कथा को सुन करके उनके मन में जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा पूर्ण हुआ। और आर्त में श्री गजराज जी ने, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, जिन्होंने जी गजराज ने
ग्राह के कबल में आकर के उनके प्राण जाए प्राण जाए प्राण जाए और हाथ उठा करके प्रभु को पुकारे, तो स्वयं गरुड़ पीठ पर आरूढ़ होकर के भगवान आए, उनको दर्शन दिए। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के जो जीव है, जो भाग्यवान जीव है, मेरे शरण में आए, परंतु जो 4 प्रकार के दुर्भाग्य जीव है वो मेरे शरण में नहीं आते हैं। वो 4 प्रकार के सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कहते हैं ना? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, नमं दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रभुत ज्ञान आसुरी भावमाश्रित। जो दुष्कृति है, जो अनफॉर्चुनेट जो जीव है, जो अत्यंत असंस्कारित जो जीव है, वो 4 प्रकार के हैं। पहला कहने लगे कौन ना? मूढ़। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को। मूर्ख कौन है इसी संसार में? हु इज फुलिश? मूर्ख कौन है ना? इसी शरीर को जो आत्मा समझते, देहात्म बुद्धि जस्य स मूर्खः। शरीर को ही जो आत्मा समझते उनको कहते शास्त्र में मूर्ख है। शरीर आत्मा नहीं है। शरीर क्या आत्मा है? आत्मा एक अलग वस्तु है जिसका पहचान हमारे शरीर में कर्ता स्वरूप में विराजित है, जिसको हम लोग कहते हैं मैं कौन हूं। इसका रिप्लाई क्या दोगे? मैं शरीर हूं? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या होगा? मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। शरीर मेरा है। शरीर की जितनी भी अंग प्रत्यंग है ये सब जगह मेरा है। तो ये मेरा कहने वाले कोई कर्ता तो है। वो कर्ता कौन है? कहते वो आत्मा है। वो रियल आत्मा है जिसको हम लोग देख नहीं पाते, जिसको गीता में भगवान कहते हैं नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि। अस्त्र के द्वारा उसको काटा नहीं जा सकता है, पानी में डुबाया नहीं जा सकता है, हवा के द्वारा उड़ाया नहीं जा सकता है, और अग्नि के द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता है। वो अच्छेद्य है, वो अक्लद्य है, वो असुष्य है, वो नित्य सर्वगत स्थान अचल सनातना। वो कभी मरती नहीं है। चाहे जीव जैसा कर्म करे, कर्म के अनुरूप उनको अच्छे जोनी में जन्म मिलता है। तो महाराज कभी कभी बुरे जन्म में जन्म मिल जाता है, परंतु वही आत्मा उसी शरीर के अंदर प्रवेश करती है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती है। ये देहात्म बुद्धि जो जगत है, जो मेटालिक पीपुल है, जिन लोगों ने, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिकवादी, जिनका थिंकिंग केवल जगह वो मेटालिक, सारे जगह महाराज जी के आयरन भरे हुए हैं उसके अंदर में, खोपड़ी में। जो लोग स्पिरिचुअल थिंकिंग नहीं है जिनके अंदर में, वो लोग नहीं समझ पाते कि शरीर के अंदर में एक आत्मा है। वो लोग शरीर को ही आत्मा समझते हैं। ऐसे शरीर को आत्मा समझने वाले व्यक्ति को कहते हैं मूर्ख है। एक दृष्टांत जा सकते हैं, हम लोग गधा क्यों कहते हैं? एक प्राणी का नाम गधा क्यों है? गधा का मतलब मूर्ख होता है। हम लोग कहते हैं ना तू गधा है, गधा का मतलब क्या है? तो बड़ा मूर्ख है। अच्छा जी कि गधा क्यों कहते हैं, गधा को मूर्ख क्यों कहते हैं? इसका कारण, उसका जो मालिक है ना, इसको रस्सी से बांधते नहीं है, वो गले में हाथ में ऐसे घुमा लेते हैं, तो गधा समझता है मैं बंध गया हूं। रस्सी से बंधा नहीं जाता है, केवल हाथ घुमा लेता है मालिक, परंतु उसी से जितना भी मारो उनको मन में है कि मैं बंधा हुआ। ये उनकी मूर्खता है। दूसरी मूर्खता क्या है?
ये गधा बरसात में कमजोरी पड़ जाता है, शरीर दुबला हो जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में खूब धूप में वो मोटा हो जाता है। इसका कारण क्या है? कहने लगे थे कि जब मालिक उसको बांध देता है, बांधने के बाद वो घास चरते 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 कम से कम देखिए महाराज धूप के समय पे समर सीजन पे देखिए घास होता नहीं है, जमीन पे घास होता नहीं है, केवल थोड़े 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 मुंह मारते मारते कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चला जाता है, तो पीछे मुंह फिरा के देखता है तो कहने लगे इतना घास में खा गया, इतना घास खा गया, सोच करके वो खुश हो जाता है। तो महाराज वो गर्मी में मोटा हो जाता है, जब बरसात में खूब घास होता है तो थोड़े बहुत खाते उसका पेट भर जाता है, तो मन में सोचता है कि आज तो मैंने कुछ खा ही नहीं पाया। थोड़े घास खाने के बाद उसका पेट भर जाता है तो मन में दुख है, आज मैंने कुछ खा ही नहीं पाया, इसलिए ये दुख के कारण वो दुबला हो जाता है, इसलिए उनको कहते हैं मूर्ख है। तो ये जो संसार में जैसे महाराज ने कहा है, जिन लोगों ने 4 वस्तु को ही धर्म माना, जो खाना पीना सोना और बच्चा पैदा करना, ये चारों को ही जिन लोगों ने धर्म नाम से बोल दिया है, धर्म कहते हैं इसको, उसको कहते हैं मूर्ख है भैया। इसीलिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर नहीं दिए। मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान को पाने के लिए भगवान ने कृपा करके, ये हमारे पूर्व जन्म का कोई ऐसे कि अच्छा कर्म नहीं है, अच्छा पुण्य किया नहीं है, जिसके फल स्वरूप में भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। ये तो भगवान की गॉड गिफ्ट है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये तो भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके मल्लक्षण इमं काय लब्धम मध्यम आस्तिकम आनंदम परमात्मम आत्मस्थं जगमुपेति माम। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने उद्धव को कहा, हे उद्धव, मैंने ये मनुष्य शरीर को दिया है, मेरे जो सिम्टम, मेरे लक्षण युक्त ये शरीर को इसीलिए दिया हूं जो आनंद को पाने के लिए। आनंद कौन सी है ना? परमात्मनम, जो परमात्मा है वही आनंद स्वरूप है। आनंदम परमात्मनम आत्मनम माम उपेति माम, मेरे पास आने के लिए, मेरे को पाने के लिए ये एक सोपान है, ये एक नौका है, ये एक बोट है। इसलिए भगवान ने अपने ओर को पाने के लिए, आप लोग तो विदेश में रह रहे हो, आप तो देख रहे हो यहाँ पर जी कितने लोग हाय हाय करके मर रहे हैं। क्या ये लोग सैटिस्फैक्शन है अपने से? सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ रहे, वही आनंद को पाने के लिए। तो किसको दिखाई पड़ रहा है पैसा में आनंद है, तो पैसा के पीछे भाग रहे हैं। तो कोई जो है महाराज स्त्रियों में आनंद है, तो स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं। वो भगा रहे, माया भगा रही है, तो अभी तक किसी को आनंद मिला है? उसे दौड़ते दौड़ते बताइए, मिला है? ये तो महाराज मृग मरीचि का मात्र है। हम लोग कहते हैं ना, राजस्थान की रेतियों पे जब सूर्य का प्रखर ताप पड़ता है तो महाराज उसी रेतियों में जल जैसा दिखाई पड़ता है, उसको कहते हैं मृग मरीचिका। कोई प्यासा मृग और पानी पानी कह करके दौड़ रहा है राजस्थान की रेती पे, परंतु पानी जैसा दिख रहा है परंतु उसके अंदर पानी नहीं है। तो ऐसे ही देखिए महाराज, आप
आप इस दस में भी आकर के आप दौड़ते हुए देखिए, आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा आपको जो ऋषि मुनियों का जो देश है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो साहित्य है, उनकी जो नीति है, उनकी जो रीति है, उससे मार्ग पर चलने से ही हमको आनंद मिल सकता है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने उसी वस्तु को रख करके गए, उसी वस्तु में ही आनंद है। इसलिए जिस वस्तु के लिए जो मूढ़ व्यक्ति है वो समझ नहीं पाते, इसलिए भगवान के शरण में नहीं जाते। जो लोग केवल खाना पीना सोना इसको ही धर्म मान लिया, वो लोग भगवान के शरण में नहीं जाते। दूसरा व्यक्ति कौन है? जो नराधम है, थोड़े बहुत नॉलेज है, हमको कह रहे थे थोड़े बहुत ज्ञान है, जो भारतीय वासी होते थोड़े बहुत नॉलेज है, भगवान का भजन करना चाहिए। परंतु यहाँ पर भी आकर के देख रहे जी पाश्चात्य देशवासी लोग तिलक करके कंठीमाला पहन करके हरिनाम कर रहे, वेस्टर्न डिवोटीज देखिए ये लोग कर रहे हैं। परंतु हम लोग यहाँ पर भी आकर के उन लोगों को देख करके भी हमारी आंख नहीं खुल रही है। हम अभी तक हमारा भाग्योदय नहीं हुआ है। हम भारतवर्ष में जन्म हुए हैं, हमको नॉलेज है, हमको भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा कौन जीव है? परंतु कभी कभी ये अल्प विद्या भयंकरी हो जाती है। बोलो राधे राधे। कभी कभी ये अल्प विद्या है ना, थोड़े बहुत नॉलेज भी बड़ी भयंकर हो जाती है। कहावत है ना, लिटिल लर्निंग इज द डेंजरस थिंग। इसीलिए ये लोग माला जपने लगे और हम लोगों को माला जपने में अभी तक हमारे भाग्योदय नहीं हुए। ये लोग जिस वस्तु को छोड़ करके बैठे हुए हैं और उसी वस्तु को हम लोग पाने के लिए दौड़ रहे हैं। ये मृग मरीचिका है। दौड़ोगे ऐसा नहीं है, हमारे पुरखों ने भी दौड़े, जिन लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया उनके पूर्वजों ने भी दौड़े। आपको भी दौड़ना पड़ेगा, फिर भी कुछ हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चंचला है। You will do yes, okay. तो ये नराधम है, सब कुछ जानते हुए भी जो करता नहीं है, और आश्रय भाव आश्रित है। थोड़े बहुत भी नॉलेज है, परंतु ये स्वभाव जो असुर का जो स्वभाव है, नेचर है, कभी कभी क्रोध कभी कभी काम आकर के हावी कर जाता है, जिसका कारण जो आसुर भाव संपन्न व्यक्ति वो लोग भी भगवान के शरण में नहीं आते, मेरे शरण में नहीं आते। इसीलिए नमं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। और जो माया प्रभुत ज्ञानम, ये भगवती माया ने जिनकी मति को हरण कर चुकी है, ऐसे जी के महाराज संसार के चार जो जीव है ये प्रभु के शरण में कभी आते नहीं हैं। वही चार जीव हैं। इसलिए नमः भगवान खुद कह रहे हैं अर्जुन, ऐसे जो चार व्यक्ति है मेरे शरण में नहीं आते, लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है। जब भाग्योदय होता है, जब सत्संग में आते, साधु का संग होता है, तब जाकर उनका भाग्योदय होता है। तभी राधा गोविंद मंदिर में आकर के हाथ उठा करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन शब्दों के द्वारा अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। इसलिए आप लोग भी धीरे धीरे इस मार्ग में आइए। शायद लगता है आप लोग हर संडे में आते होंगे। आते हो हर संडे में? नहीं आते हो? क्यों? आना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर देखिए एक हिंदू जी गौड़ीय मठ है, ये राधा गोविंद का। आप लोग नहीं आओगे तो कौन आएगा यहाँ पर? इसलिए आइए, इसका बेनिफिट लीजिए, कीर्तन का, प्रवचन का और प्रसाद का भी पूरा बेनिफिट लीजिए। आया करिए आप लोग संडे में। इसीलिए तो ये सब
मंदिर बनाया गया है। हरे कृष्णा। अभी ठाकुर जी की आरती होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे